So dear students, today we will discuss motion chapter of class 9. There are a lot to know, a lot to discuss as always, but before we begin, please subscribe this channel to get the latest notification on time. Now, there are two terms, rest and motion. To understand this chapter, we have to understand the two terms, rest and motion. First of all, we understand the rest. Rest means a body is said to be in rest if there is no change in position of the object with respect to its surrounding. For example, this board. There is no change in position of this board with respect to the wall. Okay? There is no change in the position of this board with respect to this wall of the room. Time is going, but there is no change in the position of this object. So this is said to be in rest position. Now, if we talk about the motion chapter, motion means movement of any object. If there is a change in the position of object with respect to surrounding, with respect to time, then we will say the object is in motion. For example, motion of a moving vehicle in the road. Motion of a moving vehicle in the road. Now, types of motion. But before we talking about types of motion, again, I want to tell you something. Rest and motion are relative terms. A body is said to be. A body is to be in rest position and as well as in motion at the same time. ठीक है? दोनों ऑब्जेक्ट रिलेटिव होते हैं और कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर भी हो सकता है और मोशन पर भी हो सकता है एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप अपने ब्रदर और सिस्टर, एज्यूम कीजिए, एक कंडीशन दे रहा हूं मैं आपको. आप, आपके ब्रदर, आप एक सिस्टर, आप एक कार में बैठ के कहीं जा रहे हैं रोड पे और आप तीनों बातें कर रहे हैं. तो आप तीनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पोजीशन में, क्योंकि आपकी पोजीशन कोई चेंज नहीं हो रहा. आप इजीली कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं. बट सपोज कीजिए उसी समय आप जिस कार में जा रहे हैं उसके बाहर को आपका एक दोस्त है जो आपको देख रहा है जाते हुए. तो उसके लिए आप क्या है, मूविंग में आप मूव कर रहे हैं और उसके लिए, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में आप अपने फ्रेंड के रिस्पेक्ट में आप मोशन पर है. जबकि आप तीनों, आप, आपके ब्रदर, आपका सिस्टर, आपकी सिस्टर, तीनों क्या है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पोजीशन में. तो ये क्या है, ये दोनों रिलेटिव टर्म्स है. ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, रिलेटिव टर्म्स. नाउ टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ मोशन. टाइप्स ऑफ मोशन, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मोशन आई मेंशन हियर. ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन एंड कॉम्प्लेक्स मोशन. Now first, translatory motion. Translatory motion, when body moves in a straight line path or in a curved path, then the object is said to be in translatory motion. Okay? अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन. इसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं, सब डिवाइड कर रहे हैं, रेक्टिलिनियर मोशन और कर्व मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन में क्या है, object is moving in a straight line. For example, motion of a train in a straight path. Rectilinear motion हो गया. Curve motion means, ये तो rectilinear motion means motion of object in a straight line. Curve motion means object is moving in a curved path, like this. For example, motion of a vehicle. For example, bicycle. Motion of a bicycle in a taking turn. Motion of bicycle taking turn in a curve path is the example of curve motion. Okay. Now, second, rotatory motion. Rotatory motion means object is rotating about a fixed position. Object is rotating about a fixed position. For example, motion of a ceiling fan. मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ अ सीलिंग फैन. ब्लेड्स कैसे मोशन करती हैं, एक ऊपर से एक्सिस के अराउंड ब्लेड्स मोशन करती रहती है, रोटेट करती रहती है. ठीक है,
the motion of blades around a fixed axis. Now, vibratory or oscillatory motion. Vibratory means motion of object about to and fro about the mean position. Motion of object to and fro type motion about the mean position. For example, motion of pendulum. Motion of pendulum in a wall clock. वॉल क्लॉक में क्या होता है, एक मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन होता रहता है. पेंडुलम ऐसे ही तो मोशन करता है, एक मीन पोजीशन होती है, उसके टू एंड फ्रो पेंडुलम मूव करता है, उसे क्या कहते हैं हम, ऑसिलेटरी मोशन. वाइब्रेशन में भी यही होता है, वाइब्रेटरी मोशन, ये दोनों सेम ही है. वाइब्रेटरी मोशन में भी क्या होता है, एक मीन पोजीशन है, उसके ऊपर नीचे ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव करता है तेजी से, इसी को तो वाइब्रेशन कहते हैं. वाइब्रेशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, एक मीन पोजीशन में. ठीक है, तो टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मीन पोजीशन. फॉर एग्जांपल, मोशन ऑफ अ पेंडुलम इन अ वॉल क्लॉक. नाउ लास्ट, कॉम्प्लेक्स मोशन. कॉम्प्लेक्स मोशन मींस कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन मोशन. फॉर एग्जाम्पल क्या है, ऑब्जेक्ट, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, मोशन ऑफ दिस बॉल इन एन इंक्लाइन प्लेन. मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, दिस बॉल इन एन इंक्लाइन प्लेन. अब ये बॉल क्या है, रोल डाउन हो रही है, रोलिंग मोशन करते हुए आगे बढ़ रही है. ठीक है, मोशन ऑफ दिस बॉल रोलिंग डाउन इन एन इंक्लाइन प्लेन. अब ये रोल कर रही है मींस इसमें रोटेटरी मोशन है, और रोल करते हुए आगे बढ़ रही है मींस इसमें ट्रांसलेटरी मोशन. ठीक है, आगे बढ़ रही है, ट्रांसलेटरी मोशन है, और रोल करते हुए मींस रोटेटरी मोशन. तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन. सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, मोशन. होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड लाइक दिस चैप्टर. सो see you soon. Okay, thank you.